Now, my dear students, we will discuss exercise 14.1. The statement of the first sum is, give 5 example of data that you can collect from your day-to-day life. We have to write the 5 examples, the data which we collect from our day-to-day life. Okay. I told you previously that what is the data? The data क्या होता है? The data is the fact or figures that we collect for a definite purpose. कुछ भी फैक्ट्स हो फिगर्स हो जैसे हमने कलेक्ट किया कुछ डेफिनेट पर्पस के लिए डाटा वो हमारे लिए डाटा है एंड दे आर टू टाइप्स ऑफ डाटा प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा क्या होते हैं द डाटा विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी क्या होता है प्राइमरी डाटा एंड द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी डाटा काउंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन योर सोसाइटी you can count according to the houses that how many vehicles in your society. This is called the primary data. Count the number of students in your school, count the number of benches in your school, count the measurement of the heights of 20 students. You can count himself. Count the write the maximum marks of your average marks. Write the average marks of any subjects, English, Hindi, maths. Okay. So these are the examples of primary data. Secondary data, the data which is not collected by the investigator himself but obtained by any other source. For an example, he can obtain the data from the television or newspaper or any other person. These are called secondary data. Okay. For an example, quantity of fuel wastage due to traffic jam in Delhi every week. This is an example of secondary data. Count the number of females per 1,000 males in a particular state. This is an example of secondary data. And collect the result of election which are held last 5 or 10 years in your state. These are the examples of secondary data. So in this way you can write 5 examples of data and 5 examples of data that you can collect from a day-to-day life. And a second question, classify the data as a primary or secondary. आपने जो फर्स्ट सब में आपने 5 एग्जांपल दिए हैं उन 5 एग्जांपल्स में से हाउ मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम द सेकेंडरी डाटा एंड हाउ मेनी एग्जांपल्स बिलोंग्स टू प्राइमरी डाटा. सो यू हैव टू क्लासीफाई. आपको सेकेंड में बताना है कि कितने एग्जांपल्स प्राइमरी डाटा के हैं कितने एग्जांपल्स सेकेंडरी के. आपको जस्ट नंबर बताना है. दैट्स इट. दिस इज द एक्सरसाइज 14.1. Now, my dear student, this is the first sum of exercise 14.2. Now we will discuss exercise 14.2. The statement of the first sum is, the blood group of 30 students of class 8 are recorded as follow. These are the blood groups of the class 8 student and the 30 students are here. And represent the data in the form of frequency distribution table. We have to make the frequency distribution table and we have to represent the data in the form of this table. My dear students, I told this in the previous video or in the basic terms and definition of the statistics. मैंने आपको बताया था कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के कितने वे होते हैं. आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में और डाटा को रिप्रेजेंट करते हो ग्रुप फ्रीक्वेंसी में. दिस इज अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा हम इसे ग्रुपिंग नहीं कर सकते कि ग्रुपिंग तो करेंगे जब नंबर्स होंगे कि 0 से 5 के बीच में ही आता है. दिस इज अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं सिर्फ जस्ट फ्रीक्वेंसी अनग्रुप डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप डाटा. ठीक है ना. तो हमें क्या बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. इस अनग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है ना कि वो इजी हमें अंडरस्टैंड समझने में वो आसान रहे. ये क्या है तो सिर्फ जस्ट नंबर दिए हुए हैं. ये रो मटेरियल है रो डाटा है. हमें इसका एरे भी नहीं बनाना है सिर्फ रो डाटा को एक टेबल में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है ना. तो हमें क्या बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्लियर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपके पास दिया हुआ है ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं. ठीक है ना कि कुछ स्टूडेंट्स के ए ब्लड ग्रुप है कुछ के बी है कुछ के ओ है. ठीक है ना. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पहले ये डाटा किसके बारे में डाटा ब्लड ग्रुप्स के बारे में. ठीक है ना. तो पहला कॉलम होता है हमारा ब्लड ग्रुप. हम क्या लिखते हैं ब्लड ग्रुप. ओके.
नेक्स्ट कॉलम होता है टैली मार्क्स का। मिड कॉलम हम बीच का कॉलम रखते हैं टैली मार्क्स के लिए। ये रिजर्व होता है कि आपने यहाँ टैली मार्क्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिखा टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। नेक्स्ट थर्ड कॉलम होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, योर और यू कैन से फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड कॉलम हमें लिखना है कि यहाँ ब्लड ग्रुप ए लिखा है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू दिस ब्लड ग्रुप, दैट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी, और यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। अब हमें चेक करना है सबसे पहला ए, कि हमें ब्लड ग्रुप में लिखा ए। अब हम चेक करें कि ए की रेपिटेशन कितनी बार है, कि कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्टूडेंट्स है जिनका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना। तो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा कि 9 बार रिपीट है, ठीक है ना। टैली मार्क्स को क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके टैली मार्क्स लिखने का वही होता है, मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आया है ए के बाद बी। बी ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का है, 1 2 3 4 5 6 क्या है, आपने यहां लिखा 6, 1 2 3 4 5 6, these are the tally marks and these are the frequency of B blood group, ठीक है ना। B के बाद क्या है, O blood group। O है ये जो डाटा हम बना रहे हैं अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा को एक टेबल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डाटा। क्लियर। तो O कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है, तो यहाँ 12 लिख दो, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिर्फ यही वे है कि 4 के बाद एक क्रॉसिंग डाल दोगे, 5th है, फिर नेक्स्ट से आगे फिर 5 6 7 8 9 ऐसे चलेगी, ठीक है। दिस इज O एंड देन थर्ड A भी कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 टाइम्स है, तो आप यहाँ लिखोगे 3, 1 2 3। क्लियर। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ब्लड ग्रुप। आपने पहले ब्लड ग्रुप लिखा, फिर टैली मार्क्स लिखे, फिर फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे। अब आप अपनी टेबल को कर दो क्लोज, ठीक है ना। आप यहाँ एक कॉलम बनाना, अब आप इसे कर दो क्लोज, क्योंकि आपकी टेबल हो चुकी है फिनिश। क्लियर। आप चेक करोगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 30 है ना। आप यहाँ एक कॉलम बनाना, यू हैव टू मेक द कॉलम ऑफ 30। नाउ यू हैव टू राइट इट टोटल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 30। तो चेक करो ये कितने 30 है या नहीं है। 12 और 3 15 एंड 9 और 6 15, 15 और 15 30। तो टोटल कितने स्टूडेंट है, 30। तो अब आपने यहाँ एक कॉलम बनाया टोटल का, ओके। सबसे लास्ट में एक कॉलम जरूर बनाना कि आपने वहां टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ लिखी। आपने यहाँ लिखा टोटल, ठीक है ना, कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। और 30 ही हमारे स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में, इट मींस दिस इज द राइट टेबल, आपने किसी भी नंबर को मिस नहीं किया। क्लियर। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर रिप्रेजेंट अनग्रुप डाटा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। My dear students, in first question we have to tell which is the most common blood group and which is the most rarest blood group. And I think O is the most common blood group because maximum number of children have this O blood group, 12. And the most rarest blood group AB, I think 3 students have this blood group. So the most common blood group O blood group and the most rarest AB. You have to write these 2 lines also. Now we discuss the second sum. The statement of the second sum is the distance of 40 engineer in kilometer में distance given है, the distance of 40 engineer from their residence to their place of work, from their residence to place of work, it means उनका distance कि उनके घर और उनके ऑफिस में जहाँ वो काम करते हैं वो काम करने का distance were found. It is this. Construct a group frequency distribution table. We have to construct a grouped frequency distribution table with class size 5. I told you in the basic terms what are the class size. क्या होता है class size? What is the class size?
डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज, ठीक है ना। तो आपको जो इंटरवल बनाना है, ग्रुप डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, उसमें क्लास साइज होना चाहिए 5 एंड इंटरवल कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडेड, जिसमें 5 को इंक्लूड नहीं करना। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम किया था हमने अनग्रुप का, वो था सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर उसके बाद हमने एक फॉर्म की थी कि रिप्रेजेंट द डाटा इनटू ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी जिसमें बहुत सारा डाटा हो, अनलिमिटेड डाटा होता है, हम उसको ग्रुपिंग में रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुपिंग में कि वो अंडरस्टैंड इजीली हो जाए, हमें समझ जल्दी से आ जाए, ठीक है ना। तो ग्रुप बनाते हैं, हमें ग्रुप बनाने के लिए हमें टू चीजों को ध्यान में रखते हैं, किसको, कि ग्रुप बनाना है कॉन्टिन्यूस का, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, ठीक है ना। अब एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव आपको बताया था। एक्सक्लूसिव क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म जिसमें लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, ठीक है ना। ये था एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या था, डिसकॉन्टिन्यूस क्या था, जिसमें आप जो काउंट करोगे तो अपर और लोअर दोनों लिमिट को आप काउंट करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ गिवन है कि 5 नॉट इंक्लूडेड, अगर 5 नॉट इंक्लूडेड तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनेगी, कॉन्टिन्यूस बनेगी ना। सिर्फ आपको यहीं से हिंट मिल गया कि आपने अपना जो क्लास इंटरवल, इन्होंने इंटरवल दिया ना, क्लास इंटरवल बनाना है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म का बनाना है। कैसे पता चला, क्योंकि 5 को इंक्लूड नहीं करना, अगर 5 को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वाले कॉलम में इंक्लूड करेंगे, तो 5 पहले भी होगा 5 बाद में भी होगा, तो इट इज ए कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है ना। और यहाँ देखो कैसे लिखना है, आप क्या लिखोगे, आपको दिया हुआ है इंटरवल 0 to 5, आपने 0 to 5 करना है। अब देखो 5 - 0, 5 का डिफरेंस है, क्लास साइज 5 हो गया। अब वो कह रहा है 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 को इंक्लूड नहीं करना, अगर 5 को यहाँ नहीं करूंगी तो 5 को नेक्स्ट वाले में करना पड़ेगा, तो ये और ये सेम होता है, तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म बन गया, तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है 40 इंजीनियर्स का फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, वो ये डिस्टेंस है कि पहला इंजीनियर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहता है, काम करता है, जाता है काम पर। सेकंड वाला 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अपने रेजिडेंस से वर्क प्लेस पर जाता है। थर्ड वाला 10 किलोमीटर से। तो इन दिस वे दीज आर द 40 डाटा, ठीक है ना। तो डाटा कलेक्ट किए। अब डाटा क्या ऐसे ही है, बहुत सारे हैं बट होश खुद से हैं, तो हमें इन्हें अपना रिप्रेजेंट करना है एक टेबल बनाकर कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, हमें समझ ढंग से आ जाए कि क्या इस डाटा में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्या है, ये सब 0 to 5 हमने जो इन्होंने कहा कि क्लास इंटरवल है ना, दीज आर द डिस्टेंस। तो ये क्या है, डिस्टेंस। आप यहाँ लिखोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। यू कैन राइट हियर, आप इस कॉलम में डिस्टेंस के प्लेस पर क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो। आप यहाँ क्या लिख सकते हो, क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्लास इंटरवल, आप डिस्टेंस के प्लेस पर यहाँ पर क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो, क्लास इंटरवल, ठीक है ना। ये क्लास इंटरवल है, डिस्टेंस, एक चीज लिखना, ओके। हर प्लेसेस में, हर समय यहाँ कुछ अलग होगा, तो उससे अकॉर्डिंग आपको, जैसे यहाँ डिस्टेंस है, कुछ पर क्या दिया होगा तो उस अकॉर्डिंग करना, बट क्लास इंटरवल वाला कॉलम तो सब जगह सेम चलेगा। आपकी मर्जी है, इट्स योर विश कि आप यहाँ क्लास इंटरवल लिखो या डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है ना। अब मैंने स्टार्ट किया 0 से, ठीक है ना। अब हमें लास्ट लिमिट यहाँ फिक्स करने की, कहाँ तक जाएगा, तो जो डाटा होगा हाईएस्ट मैं वहीं तक ले जाऊंगी ना। तो चेक करो अपने डाटा में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट डिस्टेंस कितना गिवन है, आई थिंक 32 हाईएस्ट है, तो इट मींस मैं 35 तक जाऊंगी, तो मेरा यहाँ पे ये चलना होगा 35 तक। 0 to 5, 5 to 10, then 10 to 15, then 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35। ये आपकी हो जाएगी लास्ट लिमिट 30 to 35 तक। क्लियर। नाउ सेकेंड कॉलम क्या होता है, टैली मार्क्स का, ठीक है ना। जो फर्स्ट सम में भी किया था इसमें वही सेम होगा, टैली मार्क्स। आपने क्या करना है यहाँ, टैली मार्क्स। थर्ड होता है फ्रीक्वेंसीज का, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी बताने की 0 to 5 के बीच में कितने इंजीनियर आ रहे हैं, 5 to 10 के बीच में कितने इंजीनियर है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखोगे या नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी या आप लिखोगे नंबर ऑफ इंजीनियर, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ इंजीनियर। क्लियर। अब हम चेक करते हैं कि 0 to 5 जो यहाँ मैंने क्लास इंटरवल फर्स्ट लिया है, अब 0 to 5 में 5 इंक्लूड नहीं करना, क्यों, क्योंकि 5 तो हमें नेक्स्ट में इंक्लूड करना है। तो आपने इसमें कितने यहाँ पे काउंट करने हैं, 0 वाले को, 1 वाले को, 2 वाले को, 3 वाले को और 4 को, क्योंकि 5 नहीं लेने। तो आप चेक करोगे 0 1 2 3 कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो ये 3 आ गया, 1 इस 32 के ऊपर राउंड हटाओ, ओके। 1 0 to 4 तक हमने काउंट करना है, 2 3 4 5 नंबर्स हैं, ठीक है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ऊपर से ऑब्जर्व करना है, आपने क्लास इंटरवल लिया 0 to 5 लिया, बट 5 को नहीं करना, तो इट मींस आपने 4 तक काउंट, आपने 0 1 2 3 4 ये चेक करना है कि ये नंबर कितने हैं और हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 0 to 1 0 to 4। तो वो लिखे मैंने, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, 0 to 5 है ना, तो उस फ्रीक्वेंसी में लिखोगे 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज टैली मार्क्स डन। अब चेक करना है 5 to 10, अब 10 को इंक्लूड नहीं करना, तो 5 6 7 8 9। अब आपने ये देखना है 5 6 5 1 7 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, बस। अब आप लिख दोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। In this way you can write. Next है 10 to 15, 10 यहाँ काउंट नहीं होता, तो 10 नेक्स्ट में काउंट होगा, 10 11 12 13 14, क्योंकि आपने 15 को नेक्स्ट में काउंट करना है, यहाँ पर काउंट नहीं करना। ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। अपने अपर लिमिट को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में काउंट नहीं करते, क्योंकि दोनों सेम होते हैं ना, तो सेम है, तो अगले वाले में ये जब लोअर लिमिट बन जाएगा देन यू हैव टू काउंट ऑल दिस, ओके। नाउ नोट, तो आपने यहाँ 10 11 12 13 14 15 14 तक ये नंबर्स काउंट करने हैं। चलो देखते हैं, 10 1 2 3 4 5 6 7 sorry 6 6 6 6 6 7 8 9 10 and 11 10 to 15 के 11 है, 1 2 3 4 ये रहता है 12 11। आप लिखोगे यहाँ 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। In this way you can write. So you have to, if you count number 15 to 20, तो आपने चेक करना है 15 16 17 18 19, तो आपने 19 तक देखना है, 20 वाले को मत देखना। तो 90 तक देखोगे नंबर आएंगे आपके पास 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। In this way if you check the numbers between 20 to 25, 25 को मत देखना, 20 21 22 23 24 आप ये देखोगे तो नंबर आएगा सिर्फ 1, तो आपने 1 लिखा। 25 to 30 के बीच में कितने नंबर है, चलो चेक करते हैं। 25 26 27 28 29 यही लेना है आपने, इसके अलावा कोई और नहीं लेना है। 25 वाला देखते हैं, ठीक है। आई थिंक जस्ट ये एक ही है नंबर, जस्ट 1, ठीक है। तो आप 1 लिखोगे यहाँ। 30 to 35 को तो लेना ही नहीं है। 35 अगर इनकेस यहाँ 35 वाला होता तो हम एक और नया कॉलम बनाते 35 to 40 वाला, उसमें हम 35 को ऐड करते। क्लियर। अब यहाँ करना है 30 से लेकर 34 तक का, 30 से 34 तक का 31 एंड 32, ये दो नंबर है तो यहाँ 2 कर दोगे, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो 1 and 2, ओके। नाउ हमारी टेबल हुई कंप्लीट। नाउ अब आपने इस टेबल को क्लोज कर देना।
दिस इज योर G. ओके, तो हाउ मेनी इंजीनियर्स 40. तो आप टोटल में क्या लिखोगे यहाँ, आपने क्लास में कॉलम बनाना है टोटलिंग का. ओके, इस टोटल के कॉलम में आपने लिखना है टोटल 40 इंजीनियर्स. तो यहाँ बनाना है टोटल. ठीक है, यहाँ लिख देना 40 इंजीनियर्स. बस दैट्स इट. दिस इज योर सम. इट इज ग्रुप frequency distribution table and in continuous form. एक्सक्लूसिव फॉर्म में है जिसमें हमने लिमिट, लोअर लिमिट को तो काउंट करना है, अपर लिमिट को काउंट नहीं करना. तो 0 to 5 में 0 to 4 वाले नंबर्स काउंट करने हैं, 5 to 10 में 5 to 9 नंबर्स वाले काउंट करने हैं. फर्स्ट होता है डिस्टेंस, और यू कैन राइट हियर क्लास इंटरवल. देन सेकंड कॉलम टैली मार्क्स का. थर्ड फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ इंजीनियर. फ्रीक्वेंसी, और क्योंकि इंजीनियर्स के नंबर्स ही तो हैं कि 5 इंजीनियर है जिनका डिस्टेंस फ्रॉम वर्क टू रेजिडेंस इतना है. 11 इंजीनियर जिनका डिस्टेंस 5 to 10 किलोमीटर के बीच आता है. ठीक है ना, दिस आर 40 इंजीनियर्स. ओके, दिस इज योर सेकंड सम. And my dear students, we have to tell the main features. Which main features do you observe to look this table? तो क्या आपने ऑब्जर्व किया इस टेबल को देखा. ठीक है ना, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स. दीज आर द 40 इंजीनियर्स. तो देखो 5, 11, 11, 9 तो यही आ गए, तो नीचे तो बहुत कम है ना. तो आप लिखोगे देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स हुज वर्क प्लेस 5 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, हुज वर्क प्लेस 5 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस. क्योंकि ऑलमोस्ट इंजीनियर्स के वर्क प्लेस 5 to 20 के बीच में हो गए, तो नीचे तो बहुत कम रह गया ना. तो लिखना देयर आर फ्यू ऑलमोस्ट इंजीनियर्स हुज रेजिडेंस या हुज वर्क प्लेस 5 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस. क्लियर, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स तो ज्यादा है ना. तो और सेकंड पॉइंट आपने क्या ऑब्जर्व किया, देयर आर फ्यू इंजीनियर्स, बहुत कम इंजीनियर है. There are few engineers whose workplace is more than 20 from their residence. Whose workplace are more than 20 kilometer from their residence. There are very few engineers. बहुत कम इंजीनियर हैं जिनका वर्क प्लेस 20 किलोमीटर से ज्यादा है अपने घर और वर्क प्लेस के बीच में डिस्टेंस. और बहुत ऑलमोस्ट सभी इंजीनियर्स 5 से लेकर 20 मतलब 0 से 20 किलोमीटर के बीच में कवर हो गए. These two features we observe to see look this table. That's it. This is the second sum. If there is any doubt, then you can comment me. Thank you.